Hello everyone, I am Pallavi and back with another tutorial on plastids. तो हम सबको पता है plastids basically the largest organelle है जो कि हमारे जो plant pigments है जैसे chlorophyll हो गया different plant carotenoids है उनको store करने में help करता है. तो चलिए इनके बारे में और थोड़ा जानते हैं, इनका स्ट्रक्चर के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में और इनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में. So let's begin with it. तो plastids हमारे कहाँ पाए जाते हैं? Mostly they are present in plant cells, है ना. तो ये प्लास्टिड जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, वो बहुत बड़े होते हैं. और इस जो प्लास्टिड टर्म है उसको फर्स्ट ई हेकेल ने दिया था इन 1865. सो these plastids, इनका काम क्या है? They are mainly used for the storage of soluble and insoluble carbohydrates. और इन plastids को based on the type of pigments they carry 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जो पहला कैटेगरी है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट the main pigment that it carries is chlorophyll, जो कि हम सबको पता है it is the photosynthetic pigment and it's green in color. Next हमारा जो pigment है, sorry not pigment, the plastid is leucoplast and ये leucoplast basically colorless होता है, इनके पास कोई pigment नहीं होता है. And the third is chromoplast. So all the non photosynthetic pigments like xanthophyll you can say, phycobilins, तो ये सब जो है ये सब other than the green color are comes under the chromoplast. Okay, they are various colors. तो ये जो plastids है they are inherited independent of their nuclear inheritance. What do I mean by independent of the nuclear inheritance? मतलब कि ये जो plastids है they have their own DNA, okay, and they will be transferred from one generation to another independently of the nucleus division. Next, the whole plastids as a whole in sum total is also called as the plastidome. This is just a term based on it. So first let us look into the first plastid जो कि हमारा क्लोरोप्लास्ट है. तो फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट का मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजिकली वो तो डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है based on this different species to species. तो mainly in higher plants क्लोरोप्लास्ट जो है मेनली हायर प्लांट्स में कैसा शेप का होता है? स्फेरॉइड शेप का होता है, मतलब स्फेरिकल शेप का होता है. और या फिर यू कैन से ओवॉइड और यू कैन से इट्स डिस्क शेप्ड. ओके, एंड इनका जो साइज है दे आर मेनली रेंजिंग फ्रॉम 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड विड्थ जो है 2 to 4 माइक्रोमीटर. एंड इनका जो नंबर है वो ऑल्सो वेरी करता है. Basically, one single chloroplast is found in many of the algae, like for example, Chlamydomonas, Eulothrix, Chlorella. These are the one chloroplast containing cells. Whereas in Spirogyra, you can find about 1 to 16 chloroplast in a cell. Or in higher plants, you will almost find 20 to 40 chloroplast per Chlorenchyma cells. ठीक है, जो कि क्लोरेनकाइमा सेल्स है ये हमारे क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं और इनमें हमारा 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. So let's now we will be discussing in more detail in the ultra structure of the plastids. So now let's begin with the chloroplast structure. तो हमको यूजुअली पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन है ना, और इसका जो 2 मेम्ब्रेन है इस 2 मेम्ब्रेन के बीच में द स्पेस दैट इज प्रेजेंट इज नोन एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस. ओके, द इनर मेम्ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट इज मेनली सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल के बारे में हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तब पढ़ा था, जहाँ पे वो सिलेक्टिवली कोई एक मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है. It selects the molecule that will pass into the cell. Similar is the case in chloroplast. Okay, तो वहाँ पे हमारा बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन. जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है
ये आउटर मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन्स कंटेन करता है और उनका नाम है पोरीज। ओके, तो जो हमारा मेन पार्ट है inside the inner membrane of the chloroplast is divided into mainly two parts. एक है हमारा ग्रेना और दूसरा है हमारा स्ट्रोमा. Okay, now let's look into what is grana and which part is the stroma. So when you can look in the ultrastructure over here, जो हमारा स्टैक्स बने हुए हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम से एक्चुअली, तो ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है ये फॉर्म करता है हमारा ग्रेना. ओके, और ये मेड अप ऑफ है थाइलाकॉइड्स. अब ये जो थाइलाकॉइड्स है ये सिंगल सिंगल थाइलाकॉइड्स है एंड दे स्टैक वन बाय वन अपॉन अनदर. ओके, और इन थाइलाकॉइड्स में हमारा जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस में टू रिएक्शंस होता है, एक है लाइट रिएक्शन एंड अनदर इज डार्क रिएक्शन. जो लाइट रिएक्शन है वो हमारा कहाँ होता है, इन दीज grana portion. Okay, and now this thylakoids are again divided into two. One is called the smaller thylakoids. अब ये जो smaller thylakoids है they can be stacked, okay, one above the other, और ये stack को as a whole is known as a granum. जो ये stack है इस stack को as a whole granum बोला जाता है. और ये stack के अंदर में बेसिकली एक ग्रेनम के अंदर हमारा क्या होता है, माइन्यूट ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाजोम्स बोलते हैं. अब इस ईच क्वांटाजोम के अंदर जो हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ये हमारा लाइट रिएक्शन जो है वो अंडरगो करता है. ओके, और वहां पे हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज 230 chlorophyll structures are present over there. Another type of thylakoid, that is the larger thylakoid. और ये जो larger thylakoids, they are basically the interconnection link. Okay, and these are also known as stroma lamella. Okay, they are long and they are membranous, and these are basically connecting most of the granums. Okay, the second part is the stroma. So stroma is basically that you can see the proteinous कॉम्प्लेक्स ओवर हियर जो मैंने ग्रीन कलर से डॉटेड किया हुआ है, ये हमारा जो है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. और हमारा जो बेसिकली डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो हमारा इधर होता है. मतलब बेसिकली जो मेरा डार्क रिएक्शंस है वो मेरे स्ट्रोमा में होता है और जो मेरा लाइट रिएक्शंस है वो क्वांटाजोम के अंदर होता है, जो कि हमारा जो स्मॉल थाइलाकॉइड्स है उसका मेम्ब्रेन्स में हमारा लाइट रिएक्शंस होता है. ठीक है, तो the next slide we will look into some basic functions and the properties of the chloroplast. Okay, चलो कुछ next हम generalized properties देख लेते हैं हम क्लोरोप्लास्ट के. तो क्लोरोप्लास्ट का अपना सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. तो the number में varies from 2 to 6 copies. Other than that, जो राइबोसोम्स हैं वो राइबोसोम्स यूजुअली यूकैरियोटिक सेल में इट शुड बी 80S टाइप, बट हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें हमको 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है. और ये जो क्लोरोप्लास्ट का सेल डिवीजन है वो सेमी ऑटोनॉमस नेचर है. What I mean by semi-autonomous is it is self-duplicating. मतलब एक प्री क्लोरोप्लास्ट से एक दूसरा क्लोरोप्लास्ट फॉर्म होगा. जैसे कि हमारा एक सेल से दूसरा सेल फॉर्म होता है, सिमिलरली हमारा एक क्लोरोप्लास्ट से दूसरा क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट होके डॉटर क्लोरोप्लास्ट को रिप्रोड्यूस करेगा. सो जो हमारा इन सब you can say कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है उनका अपना न्यूक्लिक एसिड है, उनके पास मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स है या कॉम्पोजिशंस है ये सब कुछ तुम्हारा जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है उसके साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है.
उसके अलावा उसके पास जो राइबोसोम है दैट इज ऑल्सो इट इज 70St. अदर देन दैट उसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो एटीपी फॉर्मिंग मशीनरी है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट. सो एज अ होल इट इज एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एज अ होल. तो ये हालांकि एक ऑर्गेनली है बट प्रीवियसली लाइक many years before it has been like thought of that, like it's not thought of, it's like a theory about it, that this chloroplast was actually free living bacteria. Okay, and later on they fused with eukaryotic cell and they started living as bacterial endosymbionts. Now, what do I mean by bacterial endosymbionts? Now, endo means inside and symbionts means it's a mutual survival, right? So, this bacteria, which used to live as a free living organism, get into the an eukaryotic cell and started functioning in a mutual understanding with the eukaryotic cell. So it has its own DNA. It has the ribosome that has a similar property of bacteria. Along with that, it has membrane proteins that resembles that of bacteria. So overall, we can say that this chloroplast is also believed as a bacterial symbiont of bacterial symbiont. So other than that, now the functions, if we look into the chloroplast, उसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जो लाइट एंड डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो दो पार्ट में होता है. एक हमारा जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का दैट ऑकर्स इन द quantosomes, the quantosomes which is present in the membranes of the thylakoids or you can say the granas. और जो हमारा डार्क रिएक्शन है वो हमारा कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है. अदर देन द फर्स्ट फंक्शन देयर इज अनदर फंक्शन दैट इज फॉलोड बाय द क्लोरोप्लास्ट दैट इज स्टार्च स्टोरेज. जो स्टार्च प्रोड्यूस करता है, स्टार्च इज व्हाट द फॉर्म द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, राइट. सो जो प्लांट्स है वो हमारा जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है सेल्स में. और वो कहाँ स्टोर होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट. बिकॉज during like when they will require more energy, they can use that starch to produce more energy from the chloroplast. Okay, next let's look into the other type of plastids, that is leucoplast and chromoplast. So leucoplast, as I have already told you, it is mainly colorless plastic. तो इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता है, तो इनका ग्रैनम का भी कोई यूज नहीं. व्हाट आई मीन टू से इज, जैसे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट में क्या है, दो चीज है, एक है हमारा ग्रैनम, एक है हमारा स्ट्रोमा. तो ल्यूकोप्लास्ट में क्योंकि उनके पास कोई प्लास्टिड्स है ही नहीं, तो ग्रैनम है ही नहीं, क्योंकि ग्रैनम में हमारा क्या स्टोर हुआ था, क्लोरोफिल स्टोर हुआ था. लेकिन ल्यूकोप्लास्ट में वी डू नॉट हैव दी कैरोटीनॉइड्स. सो इनका मेन फंक्शन है स्टोरेज करना. तो ये लोग बेसिकली जो पार्ट्स है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचता है वहां पे तुमको ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा. और इनका शेप बेसिकली रॉड शेप्ड है और अ लिटिल बिट ऑफ सर्कुलर आल्सो. एंड इट्स मेनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और यू कैन से मैक्रोमॉलिक्यूल दैट दे स्टोर. तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो उसको बोलता है एल्यूरोप्लास्ट. तो एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, हमारा प्रोटीन स्टोर करता है और मोस्टली यू कैन सी इट इन मील्स. एलियोप्लास्ट है एक, एलायोप्लास्ट यू कैन से, इट्स स्टोर्स लिपिड्स और फैट्स. एंड द थर्ड टाइप इज एमाइलोप्लास्ट जो कि हमारा स्टार्च स्टोर करता है और वो हमारा एग्जांपल मोस्टली यू कैन गेट इन व्हीट ग्रेन्स एक्सेट्रा. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हमारा प्लास्टिड है दैट इज क्रोमोप्लास्ट. ये हमारा नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स है, ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते और लेकिन इनके पास बहुत सारे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है और ये वेरियस कलर्स में पाए जाते हैं. यंग लीव्स में, फ्रूट्स में, जो फ्रूट्स राइप हो जाते हैं जैसे कि हमारा टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, उनका जो कलर है, या फिर जो फ्लावर्स है, the young leaves have very different colors. तो ये सब
जो colors है that comes from different kind of pigments, and these pigments basically are present in the chromoplast. So I hope this video has been useful for you. So if you like this video, please do subscribe to my channel. Thank you and good luck.